Hello everyone. In this video, I would be talking about what are the major things you should keep in mind before appearing for the personality test of CAPFAC 2023. Now, before getting deeper on these points, I would like to congratulate all of you who have successfully qualified for the personality test. Now, this personality test is very important in the CAPF journey because, first of all, it consists of 150 marks. And thereafter, the personality test is so dynamic and it is the major deciding factor of your final selection. So यहाँ पे आके you cannot lose your momentum because 1 mark here and there and you are out of the list. I'm saying on the experience of 3 years, since the last 3 years we're conducting mocks and many successful candidates, they have made it to the final merit list. I have told them some certain things they should keep in mind और उनका सिलेक्शन जो है लास्ट ईयर उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई थी जस्ट बाय कीपिंग ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन देयर माइंड. नाउ द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज दैट the main quality they are looking, those interviewing officers, are that they are looking for a balanced personality. They are looking for a person who is emotionally resilient. मतलब he is not so much influenced by the outside world. अगर आपको कोई आपके बारे में कह रहा है तो whether you are taking it personally और या सिर्फ आप उसको सुनने के लिए सुन रहे हो, in the board you will find those situations where they may do some kind of personal attack to check your emotional resilience. The board will also look a person who is intellectually curious, who wants to know things. Suppose आपसे कोई ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रॉकेट में जो इसरो रॉकेट यूज करता है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, किस तरह का फ्यूल यूज होता है. नाउ दे कैन आल्सो आस्क how we can measure the circumference of the earth. This kind of question, basic question, they may ask in the interview. Now they will also check you on the parameter of social inclusivity, whether you are sensitized for the problems of others. Are you a team player or a solo player? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. Now there are certain golden points you need to remember before appearing for the personality test. First thing is DAF is really important. Whatever is written, a single word, whatever is written on your summary sheet, that is very important. कुछ भी आपने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड ट्राई टू थिंक इन मल्टीपल डायमेंशंस, क्या क्या उससे क्वेश्चन बन सकते हैं. आई विल शो यू सर्टेन डेमो ऑफ द डैफ वेयर लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन रिटन एंड कैंडिडेट कुड नॉट प्रिपेयर ऑल द थिंग्स और इंटरव्यू में बैकलैश हो गया. नाउ सेकंड थिंग इज ट्राई टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 5 years. CAPF में वी हैव नॉट सीन मेजर ट्रेंड चेंज इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट में. आप देखोगे क्वेश्चंस आर टू सम एक्सटेंट सेम बट you need to prepare the current affairs a lot क्योंकि हर साल your majority of the interview would be on current affair. 50% part we have seen for majority of the candidate it goes on the current affairs. So current affairs को कहाँ क्या करना है आपको, आपकी स्टेट का, आपकी डिस्ट्रिक्ट का, आपकी कंट्री का, if any geopolitical issue is affecting your country also. तो 4 लेवल पे आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लोकल एरियाज. तो करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गिविंग यू टाइमलाइन ऑफ 6 months. एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटरव्यू. उससे पहले अगर 2 साल का कर पाओ तो वो और भी अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाओगे यू हैव वेरी लेस टाइम. अनदर थिंग इज एनालिटिकल असेसमेंट ऑफ द कंटेम्पररी इश्यूज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दोज इश्यूज विच हैव डायरेक्ट रेमिफिकेशन ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, वो इश्यूज आपको समझने पड़ेंगे. व्हाट इज हैपनिंग करेंटली इन Maldives, what is happening currently in Myanmar, what is happening currently in Afghanistan, Israel-Hamas war and Russia-Ukraine war, how all these issues will affect India's internal or national security. Right, now the fourth and the last important thing about the golden point you need to remember is self-awareness. You need to know what are your strengths and weaknesses, because candidate जो है the candidate who are going for the interview, most of the candidates their average age is 25 years. So 25 years में if they are not able to find out what is their strength and weaknesses, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो सेल्फ अवेयरनेस में उनको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं. नाउ coming to the qualities the board is looking for in a candidate is first important quality is that candidate would be asked question on the matter of general interest. Why general interest? Because everybody reads daily newspaper. So this is a very important medium through which we can assess the personality of an individual. So general interest में क्या क्या cover होगा, you need to know. General interest means that everyone would know that much. सबको वो इतना तो पता ही होगा. और उसके अंदर अगर आप देखोगे जनरल इंटरेस्ट में क्वेश्चन मेनली आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स सच एज, अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इकोनॉमी में है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा. सोशोलॉजी से है तो सोशल सेक्टर से मोस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर आपने BSc इन एग्रीकल्चर की है, राइट, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपको ज्यादा पूछेगा. डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट डोमेन क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड ऑन दोस पैरामीटर्स. अब ये देखिए, अगर कोई बीटेक है, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या नए मेजर चेंजेस हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इफ यू आर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर,
उससे आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हाउ डू वी कम्युनिकेट, व्हाट इज 5G, व्हाट इज 6G, 6G कौन लेके आ रहा है सबसे पहले। दिस काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन वुड बी asked from you. Now, second important thing what they are looking in a candidate is whether candidate is suitable for the armed forces or not, and how they will check it, the suitability of the candidate. First is they will check the motivation. The motivation of the candidate would be judged by asking a certain question that why do you want to join CAPF? And in your answer, there are certain things you should be able to reflect. You should be able to reflect that you have some likelihood for the armed forces. And your entire interview should show some interest in the armed forces. किसी भी आंसर में नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती किसी भी आंसर में यू स्टार्ट saying anything related to the internal security, but I'm saying that in your interview you should reflect something that you have a keen interest in the इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज एंड आर्म्ड फोर्सेस में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। नाउ उसके बाद you should know that you must be curious about the service which you are going to work, because you have written CSF as your first preference, then you might have written SSB your second, then you might have written BSF as your third, and the CRPF. तो उसमें you should be curious enough to know the peculiar challenges of each and every force. बहुत बार हमने देखा है people are not aware, the candidate are not aware what are the challenges you would face in ITBP, CSF. इनके mandate क्या है, कितनी बटालियन है, who's the current DG and area of operation कहाँ पे है। नाउ ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती कैंडिडेट को, दैट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन CAPF। आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड यू जस्ट लैंड अप हियर जस्ट टू गिव द इंटरव्यू, देखते हैं होता है नहीं होता है इंटरव्यू में। इस तरह से अगर इस माइंडसेट से जा रहे हो तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, आई एम सेइंग। नाउ उसके बाद अगर आपको ये पता होगा, बिकॉज सेकंड क्वालिटी में क्या जज कर रहे हैं, वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द आर्म्ड फोर्सेज और नॉट, इसमें करियर बनाने के लायक है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन दे वुड आस्क अबाउट व्हाई डू वांट टू जॉइन। Second question, through which they can assess whether you are suitable for the forces or not, they may ask about the responsibility of an assistant commandant, the power of an assistant commandant. उसके बाद वो power and responsibility पूछने के बाद they may ask about the internal security issues, certain dilemma of internal security, such as any controversial law such as AFSPA. Should we remove AFSPA? क्या हमें AFSPA की क्या जरूरत है? And what are the current challenges of internal security? And how the CAPF is dealing with those challenges? वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, right? Now, the third important quality they would be looking in the candidate is they will judge the mental caliber of the candidate. Mental caliber through, yes, it could be with the help of some sort of tough questions they will ask. Tough question in a such a way that जिसमें आपको वो क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ी तकलीफ हो, तो वो आपका मेंटल कैलिबर जो है कैंडिडेट का दिखाता है। अगर आपको दो तीन चीजें रिलेट करके पूछी गई एंड यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड इजिली द सिचुएशन और उसमें आप एक इनोवेटिव सॉल्यूशन भी लेके आए, दैट शोज द कैंडिडेट has some mental caliber. But if you are asking for much time, I'm not saying if you're asking for 4-5 seconds that can I think about it, that is wrong. No, it is not wrong. But a candidate who only thinks 1 or 2 seconds, but a candidate who thinks for 7 to 8 seconds, किसका mental caliber ज्यादा होगा? The candidate who are able to answer in a very short time, उसका mental caliber बहुत ज्यादा है, because he have a passion, he have in-depth knowledge. अदरवाइज आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, इफ यू हैव नॉट इंटरनलाइज्ड द इशू यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर इन अ वेरी क्विक मैनर। तो मेंटल कैलिबर भी आपका वो जज करते हैं। नाउ सपोज इन अ सिचुएशन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट यू विल डू इन दैट सिचुएशन, डू नॉट आस्क द चेयरपर्सन और द इंटरव्यूइंग ऑफिसर टू रिपीट, इट वुड बी सीन एज इनडिसेंट। आप क्या कर सकते हो उसमें, यू कैन से दैट सॉरी सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, डू यू मीन दिस बाय दिस, आपने जो पूछा इसका मतलब ये है। इफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज अगेन रीफ्रेजिंग दैट क्वेश्चन, नाउ इज द चांस टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, अदरवाइज डू नॉट आस्क डायरेक्टली द चेयरपर्सन टू रिपीट, बहुत इमोडेस्ट लगता है वो। अनदर थिंग इज दैट यू कुड नॉट डिविएट फ्रॉम द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आई हैव सीन कि कैंडिडेट जो है बहुत अलग अलग बोलना शुरू कर देते हैं, और इसको हम एक देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन इंग्लिश दैट बीटिंग अराउंड द बुश, वो नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली बुलजाई करना है आपको, आप आंसर तक पहुंचो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ समटाइम्स वी हैव सीन दैट कैंडिडेट दे डू आस्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग, सो डोंट जस्ट आंसर गाइज, यू आर गोइंग इनटू द अननोन वाटर्स। आपको पता नहीं, अगर आप ये मिस्टेक करते हो, इफ यू आर आंसरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग, दैट वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम मी और मैंने उसको कुछ भी जवाब दे दिया, ओके दिस इज करेक्ट, दूसरा पूछा उसका भी जवाब दे दिया, तीसरा पूछा उसका भी जवाब दे दिया, मेंटली आपको लगेगा कि मैं सबके जवाब देता जा रहा हूँ, ओके इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, नो, लेकिन दे आर क्रॉसिंग दैट, जहां पे भी आपको मार्क्स दिए जाने हैं वहां पे वो क्रॉस करते जा रहे हैं, बिकॉज यू आर ब्लफिंग। अगर आपको पार्शियल आंसर आता है, सीक फॉर द परमिशन, सर आई नो दिस मच बट आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट फैक्चुअल द फिगर, इफ यू अलाउ मी आई कैन स्पीक,
इफ दे अलाउ यू यू कैन स्पीक, देयर इज नो हार्म इन दैट, अदरवाइज आपको वहां पे ब्लफ नहीं करना है। इन केस यू डू नॉट नो द आंसर बट यू नो द सम पार्शियल आंसर, और आपको किसी फिगर के हिसाब से करंट स्टेट्स क्या है, ट्रेंड क्या है वो नहीं पता, सो यू कैन सीक फॉर द परमिशन एंड यू शुड गिव द इंप्रेशन दैट you are not able to answer that question because of some figures, not because of lack of knowledge। ये नहीं होना चाहिए। lack of knowledge से अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, that is not a good sign। if you are not able to answer that just because you do not know some figures, stats, वो ठीक है, right? now there is another important quality that is mental alertness। ये mental alertness का मतलब है वहां पे कुछ आपके सामने आतंकवादी नहीं एकदम खड़े हो जाएंगे, कोई सांप नहीं छोड़ दिया जाएगा। mental alertness का मतलब है आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और आपने उसको ढंग से सुना, and in the first chance only you are able to give a satisfactory answer to that question। but in case those candidates would be considered as not mentally alert if they could not understand the question and they jump to that question और उसको वो हाफ आंसर करके बीच में छोड़ देते हैं, that shows mentally alert नहीं है कैंडिडेट। if a candidate is mentally alert, वो कब होगा? the candidate if the candidate has some in-depth knowledge of the subject, wide range of knowledge, तभी ये mental alertness दिखेगा। अदरवाइज सभी एरियाज में यू कैन नॉट बी मेंटली अलर्ट बिकॉज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगर वो आपके डोमेन से बाहर है। तो उनको तभी पता चल जाता है कि कैंडिडेट को कितनी डेप्थ है, कितनी नॉलेज है इस एरिया के अंदर, राइट? सो मेंटल अलर्टनेस इज ऑल्सो यू कैन बी कंसिडर दैट इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ग्रास्प अ सिचुएशन, कितना जल्दी वो सिचुएशन को ग्रास्प करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल अलर्टनेस में अगर हम बात करें। नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट द क्वालिटी दे आर लुकिंग in a candidate is, that is very important quality, that is social trait। so certain questions on the social trait चेक करने के लिए कैंडिडेट की पूछा जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ सोशल ट्रेट्स, जैसे क्या कैंडिडेट टीम प्लेयर है, क्या सोलो प्लेयर है, क्या इंडिविजुअल है, राइट? इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्टेन क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, वेलफेयर सोसाइटी का कैसे बेहतर हो सकता है। दे में आल्सो आस्क अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस ऑन एजुकेशन इन इंडिया, हेल्थ इन इंडिया, ठीक है, सोसाइटल नॉर्म्स, पेट्रियार्की इफ यू कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल बैकग्राउंड, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन द बोर्ड वुड लाइक टू आस्क, राइट? उसके बाद अगर हम देखें दैट there are certain current affairs related to your DAF also which you need to prepare, current affairs such as related to a district, your state, India and the world affairs। इससे क्या पता चलता है? the candidate is aware about his locality, state, country, then they would project that the candidate will do good in the forces also, because forces में बहुत सारी प्रॉब्लम है और उन सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसको सोल्व करने की डायरेक्शन में काम करना, ये तभी हो पाएगा इफ यू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, राइट? ओके गाइस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी आल्सो दैट द बोर्ड इज लुकिंग, दैट सोशल ट्रेट क्वेश्चंस में आपको प्रोजेक्ट करना है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट व्हाट यू वुड बी योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो आपको अपना फ्यूचर रोल जो है वो पता लगाना जरूरी है। एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप क्या क्या कर सकते हो फॉर सोसाइटी एंड आल्सो फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी डोमेन। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए यू वुड हैव लिटिल स्कोप, बट as an assistant commandant you can do a lot or to contribute in the internal security, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो फ्यूचर जॉब को ध्यान में रखते हुए एज एन असिस्टेंट कमांडेंट का रोल क्या होगा, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम देखते हैं देयर आर अनदर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, दैट इज द नेक्स्ट क्वालिटी इज क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलिएशन। ये क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलिएशन क्या है? दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये सारी जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस मेरे घर की नहीं है, ये यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है, जिसमें वो पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताते हैं कि व्हाट दे आर लुकिंग इन अ कैंडिडेट। सो देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट इज रिटन गिवन बाय द यूपीएससी, दैट इज क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलिएशन। दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, एंड असिमिलिएशन का मतलब है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू आर गिविंग अ थॉटफुल रिप्लाई, अ लॉजिकल थिंकिंग, अ लॉजिकल आंसर। दैट शोज द क्रिटिकल पावर ऑफ assimilation। Now, how the board would check your critical power expression or assimilation? They would ask certain question related to current affairs and your subject knowledge, ग्रेजुएशन में जो किया है, और जिस प्रोफाइल के लिए आप आ रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आ रहे हो, तो हर एक फोर्सेज में क्या क्या सिक्योरिटी सिनेरियो हैं और इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स क्या है। दे विल गिव सम हाइपोथेटिकल सिचुएशन आल्सो मे बी टू चेक योर इनोवेटिव पावर, ठीक है, इनोवेशन पावर और क्रिएटिव थिंकिंग आल्सो दे कैन चेक। So critical power of assimilation means that you can understand the question and you are able to express this। Expression भी assimilation का ही एक part होता है, right? Suppose many candidate क्या है, there is a problem with respect to कौन सी language में हमें appear होना चाहिए, हिंदी और English। Now expression, I'm telling you, expression is more important than language।
इफ यू आर एक्सप्रेसिंग इन असर्टिव वे, एक्सप्रेशन आपका पावरफुल है, एक्सप्रेशन में आपकी कोई इशू नहीं है, कोई गैप नहीं है, वर्बली नॉन वर्बली एक्सप्रेशन इज वेरी गुड, तो हिंदी इज नॉट अ प्रॉब्लम आई मस्ट से। जस्ट मियर स्पीकिंग ऑफ एन इंग्लिश डज नॉट टेल द बोर्ड कि आपकी पर्सनैलिटी असिस्टेंट कमांडेंट रोल के लिए फिट है। पाव ये एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट rather than language. Now the next thing is logical exposition within least time. On what is least time? Least time का मतलब है you have understood the question and in a very less span of time you are able to answer that. That is very important. So logical exposition within least time, and you are able to give the comprehensive description also, and they will also love to check that how confidently you are able to remember and you are giving the answer. So the structure of the answer is also checked and how quickly you can answer, वो भी चेक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट दे आर लुकिंग इन अ कैंडिडेट इज बैलेंस ऑफ जजमेंट। अब बैलेंस ऑफ जजमेंट में देखिए, अब बैलेंस ऑफ जजमेंट में दैट दे वुड आस्क सर्टेन कंट्रोवर्शियल थिंग्स, they may ask certain controversial things like one nation one election. They would ask that India should revert to old pension scheme. तो इसमें they would be checking your balance of judgment. आप किसी एक पार्टी का या फिर किसी एक पक्ष का डायरेक्टली सपोर्ट मत लीजिए। दे आर लुकिंग फॉर अ योर प्रूडेंट व्यू। आपके सिर्फ पर्सनल व्यू से काम नहीं चलेगा, लॉजिकल व्यूज क्या होने चाहिए, लॉजिकल सजेशन क्या हो सकता है आपका। तो बैलेंस, अगर ओपीएस हम इंप्लीमेंट करते हैं, नेगेटिव्स क्या होंगे, पॉजिटिव्स क्या होंगे, दोनों। वन नेशन वन इलेक्शन का नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। तो पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो वी कैन गो फॉर वन नेशन वन इलेक्शंस। ओपीएस का नेगेटिव ज्यादा है तो वी शुड रिफ्रेन ऑप्टिंग फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम। इस तरह की चीजें आपकी बैलेंस ऑफ जजमेंट सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की भी हो सकती है। सो दे आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट who has some balance of judgment. Now the next quality they are looking in a candidate is variety and depth of interest. That is very important. So आपका जो इंटरेस्ट है, where whatever you have written in your hobby section, कितना इंटरेस्ट है, कितनी डाइवर्सिटी है, कितना क्यूरियोसिटी है आपको उसके जानने में, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपके डीप जा सकते हैं वो। सो दिस इज एन एरिया जहाँ पे आप मना नहीं कर सकते, आई डू नॉट नो। दिस एन एरिया द बोर्ड इज एक्सपेक्टिंग। अगर आप जनरल क्वेश्चंस में ही मिस कर रहे हो, नहीं पता आपको वो क्वेश्चन ही, दैट शोज यूर ब्लफिंग। आपने वो जो लिखा था डैफ के अंदर हॉबी सेक्शन में, आपने वो एक कॉन्शियस डिसीजन लेके ही लिखा था, लेकिन नाउ यू डू नॉट नो नथिंग अबाउट दैट शोज आपने ब्लफ किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दे आर लुकिंग इन अ कैंडिडेट इज एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप। नाउ सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप आर्म्ड फोर्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जहां पे व्हेन यू नीड टू टेक योर ट्रूप्स विद यू एंड यू हैव टू लीड ऑल्सो। तो योर एबिलिटी टू सोशल कोहेजन ये बोर्ड में ही पता चल जाएगा व्हेन यू बिहेव विद डिफरेंट इंटरव्यूइंग ऑफिसर। बोर्ड में 5 से 6 इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, मिनिमम 5 समटाइम्स 6 ऑल्सो। सो योर एबिलिटी टू सोशली कोहेज विद ऑल द इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, सबका बिहेवियर अलग अलग होगा, कैसे किसको डील करोगे, दैट शोज योर एबिलिटी। दे विल ऑल्सो लुक फॉर अ लीडरशिप क्वालिटी, कहाँ पे आप इनिशिएटिव लेते हो। अगर दे आर आस्किंग फॉर यू सम सॉर्ट ऑफ suggestion, recommendation, how we can solve these issues, that shows your leadership, you are taking some initiative. Now the next quality they are looking in a candidate is intellectual and moral integrity. This is very important quality. Now there will be certain instances where they will try to corner you, where they will try to extract some information from you, or in that event आप गलत information दे दोगे and they will again cross check you, they will ask you are you sure about it. So intellectual and moral integrity says that when anybody is not denying or checking you, you are giving the rightful information. So that shows the integrity in a armed service officer is very important and it is the foremost requirement. पता लगे एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स कहीं और के हैं, आपने कहीं और के बता दिए, बॉम्ब और मिसाइल कहीं और गिर रही है, राइट, जस्ट बिकॉज आपके सुपीरियर ने पूछ लिया कि व्हाट इज द करंट लोकेशन एंड यू कुड नॉट एबल टू फाइंड दैट लोकेशन, एंड इन दैट इवेंट जो प्रेशर लाइक सिचुएशन में है आपने गलत कोऑर्डिनेट्स दे दिए, राइट। तो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव आपके ऊपर कितना भी प्रेशर हो। नाउ इंटरव्यू टेक्निक इज नॉट टू क्रॉस एग्जामिन, बट एक नेचुरल और डायरेक्टेड और पर्पसफुल कन्वर्सेशन है बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। वन थिंग, समटाइम्स द इंटरव्यूइंग ऑफिसर बिहेव्स लाइक दैट वो आपका फ्रेंड है, लेकिन यू कैन नॉट बी बिहेव इन दिस मैनर। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, दे आर हाईली ऑब्जेक्टिव दैट दे वांट टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ दिस कैंडिडेट, बट योर ऑब्जेक्टिव यू शुड नॉट लीव दैट ऑब्जेक्टिव कि आप वहाँ किस पर्पज से गए हो। So you cannot be informal during interview. You need to be keep in boundaries. And sometimes you have seen that candidate जो है थोड़ा सा प्रेशर आने के बाद ही टेंसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं. You should avoid that. That shows you are not confident. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडर की, कॉन्फिडेंस, वो नहीं मिलेगा आपके अंदर. Another important quality they are looking in a candidate is that the general knowledge आपकी चेक हो चुकी है. Now they are asking and checking about your specialized knowledge. Specialized knowledge से मतलब है आपने जो ग्रेजुएशन में किया है, they would be check.
और वो कैसे चेक करेंगे, दे विल आस्क सर्टेन एप्लीकेशन पार्ट। आप अपना अप्लाई कैसे करोगे, ग्रेजुएशन में जो नॉलेज आपने इकट्ठी की है उसको कैसे अप्लाई करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नाउ द लास्ट थिंग इज द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू टेक इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट नॉट ओनली इन द सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक स्टडी बट आल्सो इन द इवेंट विच आर हैपनिंग अराउंड देम बोथ विद इन और आउटसाइड द स्टेट और कंट्री एज वेल। दैट शोज कि कैंडिडेट का जो माइंड है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है, कि आप सिर्फ किताबों में ही नहीं घुसे हुए हो, आपको पता है व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। सो यू हैव सम इंटरेस्ट ऑल्सो। और ये इंटरेस्ट किस तरह का हो सकता है आपको पता होना चाहिए, जो कि एक क्यूरियस माइंड को हमेशा पता होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स अ क्यूरियस पर्सन शुड नो, दैट एआई के आने से क्या होगा, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर, सोशल इश्यूज, व्हाट आर द करंट फिलोसफीज गोइंग ऑन, आइडियोलॉजी किस तरह की है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मेनी टाइम्स questions have been asked that I have opted for CSF, how to justify that? You can say that it's a mere, no doubt it's a mere order of preference। सबका यही होता है कि order of preference है सर, आई एम रेडी टू डू जॉब इन एनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। नाउ आपको इसमें इंप्रेशन ये नहीं देना है दैट यू विल ओनली ज्वाइन द CAPF इफ यू गेट द CSF। ये इंप्रेशन कभी भी मत देना भूल के। इंप्रेशन ये होना चाहिए दैट यू वांट टू मेक योर करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिचएवर फोर्स यू विल बी अलॉटेड। उसके बाद ये क्वेश्चन हो सकता है व्हाई CSF इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। You could say that I have some feeling or I have assessed my personality and strength and weakness that I would be a little more suitable for the role of AC in CSF, right? So you can also tell about the major and strength of the CSF, that diversity in CSF, roles and leadership, and you will get an exposure throughout the life and career satisfaction you will get while getting into the CSF, right? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर रहेंगी तो you will be able to very good in the interview. Finally, body language is really important. Body language पे we have done a lot of sessions. Our interview guidance program is there. उस पर हमने बहुत बातें की हैं. I cannot tell all these things because वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. And we are conducting mocks also. If anybody of you are interested, you can contact on a number that is given on the screen also, and I'll also give in the description also. So दिस इज ऑल। अगर आपको कोई भी इशू हो, समझ में नहीं आए कुछ चीज़ पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड, इफ़ यू फाइंड योर पर्सनालिटी और आप मॉक देना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट, एंड दैट इज़ ऑल। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सौमित्र मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। इंटरव्यू में अमन सर ने काफ़ी मेरा हेल्प किया। सर ने मेरे काफ़ी सारे मॉक्स लिए। Hello everyone, Rupesh this side. I have appeared for the interview last year. I would like to thank Defense Studies. They have a great panel. They ask variety of questions ranging from DAP to international relations. Okay, Devrat this side. मेरी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 साइकिल में AIR 13 लगी है। अमन गुलिया सर ने जो मेरी गलतियाँ थी उनका काफ़ी हद तक रेक्टिफाई किया था। Sir, firstly, I only said that when men will try to subjugate a woman, that will generate a sense of violence in the men only. Is other strategies or mechanism adopted by politicians to grab power? सिमेट्रिक वॉरफेयर वहाँ होता है जहाँ एक साइड एक ऐसी कंट्री होती है जिस पर पावर बहुत है, जिसकी आर्मी स्ट्रेंथ बहुत है। हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आते हैं। गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं। आदती मार कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक जमना लगता है। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। खुश है तो लगे कि जहां में छाई है खुशी, सूरज निकले बादलों से और बांटे जिंदगी। सुन तो जरा मदहोश हवा तुझसे कहने लगी,